Welcome to the lecture of fluid mechanics, and it's a very important course in your curriculum because fluid mechanics is based on it's a fundamental course on which both chemical engineering and petroleum engineering is based on. In petroleum engineering, जब आप petroleum engineering बाद में करेंगे तो आप डार्सी लॉ कंटिन्यूसली यूज करेंगे, एपीआई ग्रेविटी यूज करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करेंगे. The fund that is evolved from fluid mechanics. So that is why fluid mechanics is taught in both the departments. And since it's a 2 credit hour course in the PG department, I will focus based on your course. The course outline will be shared with you in time. Now, for your reading or your learning, everything is not in slides. स्लाइड के अंदर आपको हर चीज नहीं मिलेगी, मेन पॉइंट्स मिलेंगे. तो recommended reading के लिए मैंने ये 3 बुक्स दी हैं आपको. 3 books for your recommended reading. We will follow Applied Fluid Mechanics by Robert Mott. That is the main book that I will follow. Side by side for reference, I am using Fundamentals of Fluid Mechanics by Bruce. और जो तीसरी बुक है यूनिट ऑपरेशंस बाय मैकेब स्मिथ, दैट इज मोस्टली फॉर केमिकल इंजीनियर्स. इट इज अ डिफिकल्ट बुक. कीप दैट एज द लास्ट रिजॉर्ट इफ यू वांट टू सी सम टॉपिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, but the first 2 books should be good enough for you. Apart from that, whatever topic we learn, you can use the for the related topics for further details and informations and practicing the questions. और ये जो तीनों बुक्स हैं, all 3 of these books have been already uploaded. I have uploaded these 3 books in the petroleum in the fluid mechanics channel under files, so you can access it from there. Okay, concept of fluid mechanics. Before I go on to fluid mechanics, I would like to tell you that it is the study of the behavior of the fluids, either known as fluid statistics or in motion known as fluid dynamics. देखें, क्वेश्चन अराइज करता है कि फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज अ फ्लूइड. और जो दूसरा क्वेश्चन होता है, हाउ कैन अ फ्लूइड बी कैरेक्टराइज्ड. बिफोर आई गो ऑन, I would like to ask you or anyone who has any idea, it doesn't matter if you don't have an idea or it is the wrong answer, can you guess or do you know what is a fluid? Anyone? I will ask you questions continuously because I want class interaction. I don't like a dead class. So, सर जो चीज अपनी शेप चेंज कर देती है. अच्छा चलें, that is one idea. Second idea. सर जो कि मूवेबल हो, सर मूवेबल हो. सही है. लिक्विड Any फॉर्म other में हो. idea? हाँ, देखें, फ्लूइड के अंदर दोनों आंसर्स करेक्ट हैं, मगर बेहतर जो आंसर है ना वो ये है जो मूवेबल हो. Fluid is anything which can flow. That is the basic definition of fluid. 3 states of matter: the solid, liquid, and gas. Solid does not move, hence it is not considered as a fluid. Both liquids and gases can flow or move. That is why both a liquid and a gas is termed as a fluid. It is incorrect to say that a liquid is a fluid, a gas is not a fluid. Both of them, I repeat, are a fluid because they flow. That is one point. The second point was that someone said a fluid is something which can change shape. That is also correct because both a liquid and a gas can change shape. So, but that change of shape is directly related to the ability to flow or change its position. Hence, both of them are correct, but the main point of a fluid is regarded anything which can flow. Now in fluid mechanics, when we study the behavior, जब हम fluid mechanics के अंदर behavior study करते हैं तो हमारा fluid either at rest होता है या fluid move कर रहा होता है. अगर ये rest पे होता है तो हम इसको static fluid बोलते हैं. इसकी भी properties determine हो सकती हैं और हम determine करेंगे इस course के अंदर. और अगर fluid move कर रहा होता है, it is moving from one place to another, then we call this as fluid dynamics.
अच्छा, वैसे ही एक बात करते हैं, अगला चैप्टर इसी के ऊपर होगा। जब मूवमेंट आती है फ्लूइड की, which parameter do you think affects the flow या movement of the fluid apart from temperature and pressure? ये तो आप लोग पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आप लोग को तो मालूम होगा, आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा होगा। Sir, please repeat the question. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास डिफरेंट ऑयल्स हैं और वाटर है, उनका जो फ्लो है वो कौन सा पैरामीटर डिटरमिन करता है कि कितना तेज Sir, होएगा, कितना viscosity वगैरह. विस्कोसिटी होगा। दैट इज, so viscosity also plays a crucial role in fluid mechanics, and our next topic in the next lecture is going to be on viscosity next week. But I just wanted to have an idea that how much you know. Okay. अब वही बात आ रही है, what I am saying, a fluid is defined as anything which can flow, and hence are liquids or gases. इंजीनियरिंग टर्म में हम फ्लूइड कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो एक जनरल केमिकल टर्म के अंदर है। इंजीनियरिंग टर्म में अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली। किसी ने यहां पर कहा था चेंज इन शेप, चेंज इन शेप अकर्स बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, so that was correct. It deforms continuously when acted by a shearing stress at any magnitude. Shearing stress means pressure, क्योंकि स्ट्रेस का जो यूनिट भी होगा वो प्रेशर का यूनिट होगा, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। So when a shearing stress या force of any magnitude is applied, it will deform the fluid, and that is how the fluid is going to flow or change its shape. अब ये जो shearing stress होती है ना, इसकी डिटेल में नहीं जाना है हमें, but all we should know is a shearing stress is also termed as the pressure or the force applied per unit area. It is created when a tangential force acts on a surface. Tangent आपको मालूम है, जब मैथमेटिक्स के अंदर the tangent, the straight line we make which just connects and moves across the point of interest. तो जिधर ये shearing stress आती है, tangential force, उधर आप ये बोल सकते हो ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब दिस विल मेक द फ्लूइड फ्लो। इन सॉलिड द डिफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, सॉलिड में डिफॉर्मेशन होगा, बट इट इज नॉट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्ड, मोमेंटरली डिफॉर्म्ड होगा। क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म नहीं होता, अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो एंड इट इज नॉट टर्म्ड एज अ फ्लूइड। A liquid and gases such as water, oil, air, they deform continuously. As you keep on adding the force, आप force add कर रहे हो, उनका deformation भी continuously होता रह रहा है till a certain point, and because of this deformation, they are considered as a fluid. Fluids are characterized by their physical properties. मेरा दूसरा सवाल यहाँ पर था, how can fluid be categorized? अभी हमने बात कर ली कि हमारे पास fluid है, gases भी fluid है, liquid भी fluid है। I put different fluids in front of you. I put oil, cooking oil. I put kerosene. I put water. I put, these are liquid fluids. I put gaseous fluids also. Air, hydrogen, methane, propane, ethene. I ask you to characterize them. How can you know fluid is which fluid? Or how can you know liquid fluid, gas fluid? Differentiate between the fluid. You need to characterize them. In order to characterize them, you need to know their physical properties. The physical properties which are important are density, specific weight, specific gravity, surface tension and viscosity. ये जो 4 या 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये डिटरमिन करती हैं आपका फ्लूइड का नेचर, फ्लूइड का टाइप, फ्लूइड की क्वालिटी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड फ्लो पे डिपेंड करेगी, दैट इज विस्कोसिटी. दैट इज व्हाई विस्कोसिटी इज गिवन अ सेपरेट चैप्टर.
अगला जो चैप्टर होगा वो पूरा विस्कोसिटी पे इसलिए होगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखती है। जितना आपका गाढ़ा फ्लूइड होगा या जितना गाढ़ा या विस्कस फ्लूइड होगा उतनी उसकी फ्लो कम होगी। द फ्लो इज गोइंग टू स्लो बिकॉज विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। Then I would like to give you some introductory concepts starting from pressure. From your FSC, from your metric, FSC, and your applied physics till now, you know that the pressure is defined as the amount of force exerted per unit area. SI unit is the Pascal or Newton per meter square. ये प्रेशर का रिलेशन होता है एंड प्रेशर इज कंटिन्यूसली गोइंग टू बी यूज्ड इन फ्लूइड मैकेनिक्स बिकॉज इन फ्लूइड मैकेनिक्स नॉट ओनली द विस्कोसिटी प्लेज अ रोल, प्रेशर इज गोइंग टू प्ले अ रोल, टेम्परेचर इज गोइंग टू प्ले अ रोल। और आपने अपनी एफएससी के अंदर एक इक्वेशन भी पढ़ा था, बर्नौलीज इक्वेशन। याद आया बर्नौली इक्वेशन? डू यू रिमेंबर द बर्नौलीज इक्वेशन? यस, नो? नो सर। चलें, बट बर्नौली इक्वेशन के अंदर वन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन को हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिराइव करेंगे क्योंकि फर्दर क्वेश्चंस वी हैव टू डू ऑन द बर्नौलीज थ्योरम। तो इन द बर्नौलीज इक्वेशन वन ऑफ द टर्म्स वाज द प्रेशर एनर्जी, यानी प्रेशर डायरेक्टली अफेक्ट्स द फ्लो, हेंस it is a it is a very essential component for fluid mechanics. The fluids are subjected to large variations in pressure depending upon the type of the system they are used. Depend करता है आपका सिस्टम ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। अब मैंने आपके करिकुलम में ये भी देखा था कि साइड बाय साइड आपके पास थर्मो का भी कोर्स है। वैसे तो आई एम अ थर्मोडायनेमिक्स टीचर, आई टीच थर्मोडायनेमिक्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो जो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा है he or she will tell you about the types of system, open system, closed system. But whatever the type of system is there, pressure will play a role on those type of systems. Then we come on to liquids and gases, and pressure can be applied to both the liquids and gases, by the way. Fluids can either be liquid or gases. बहुत अच्छी बात है। We know, we have defined that a fluid can either be a liquid or a gas. जो general difference है between the two types of matter, वो क्या होता है? Generally तो हम ये बोल सकते हैं that when a liquid is held in the container, it will take the shape of the container. That is the general difference. जब gas होती है, on the other hand, when gas is held under pressure, it will expand completely to fill the container. यहाँ तक के if the expansion is so much or the pressure is increased, the gas will escape the container. Liquid cannot escape the container. Liquid will just take the shape. आप पानी को कोई जग के अंदर डालें तो पानी का जो शेप हो जाएगा वो उस जग का शेप हो जाएगा। गैस और लिक्विड के अंदर मेजर फर्क ये होता है। मगर जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं ना, तो दिस इज अ लेमैन्स डिफरेंस। यू कैन नॉट से दैट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैस एंड अ लिक्विड, because we want to see the difference with regard to fluid mechanics. What do you think is the difference with regard to fluid mechanics? कोई idea आपके पास? Sir, so viscous rate, how Viscous much time it takes? नहीं, तो विस्कोसिटी का तो कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं आपको चलें एक हिंट देता हूं। पिस्टन सिस्टम का सोचें, वो क्या चीज हो सकती है गैस में जो लिक्विड में नहीं हो सकती? प्रेशर सर। प्रेशर से क्या होगा? सही है, सही बोल रहे हैं, प्रेशर इज सर मैं आपको आंसर्स दे सकता हूं, बट मेरी टीचिंग ये होती है कि मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट आंसर दे, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट्स देता हूं और कॉन्सेप्ट्स चेक करता हूं। तो आप लोग खुद आंसर देंगे मुझे, आपको मालूम है आंसर, मुझे मालूम है क्या होता है। प्रेशर रिलेट करता है। चले मैं आपको एक और टिप देता हूं। सोचें सीएनजी क्या स्टैंड करती है? कंप्रेस। So in fluid
fluid mechanics terms, the general difference between a liquid and a gas is a liquid is an incompressible fluid. Liquid compress नहीं हो सकता. A gas is a compressible fluid. अब कोई मुझे ये बोल दे कि लिक्विड कंप्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर थोड़ा सा हो सकता है. उसकी कंप्रेसिबिलिटी इतनी है कि दैट इज कंसिडर्ड ऑलमोस्ट एज निग्लिजिबल, and because it is considered as negligible, a liquid is termed as incompressible. So the major difference in the two is termed as the compressibility. So if I ask you the difference between a liquid and a gas, अगर आपके पेपर में मैं पूछता हूं explain the difference between liquid and gas, या कोई क्विज या कोई असाइनमेंट में पूछता हूं, ये नहीं बोलिएगा कि कंटेनर के अंदर आता है और कंटेनर में नहीं आता है. दैट इज अ लेमैन्स डिफरेंस, दैट इज द सेकंड डिफरेंस. वी आर डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर द मेजर डिफरेंस लाइज इन कंप्रेसिबिलिटी. सो द डिफरेंस इन द टू इज द टर्म कंप्रेसिबिलिटी. And again, when you're going to study thermodynamics now, you will know that in thermodynamics and fluid mechanics, compressibility is the measure of the relative volume change of the fluid or a solid, and what, as a response to pressure change. यानी आपकी जो compressibility होती है ना, वो डायरेक्टली प्रेशर और वॉल्यूम चेंज के ऊपर होती है. तो जिसने प्रेशर कहा था वो सही उसने बोला था कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर आता है, मगर वो करेक्ट वर्ड नहीं बोल पाए उसको कि कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि प्रेशर देकर ही वो कंप्रेस होगा. सो in terms of a fluid, a gas can be compressed very easily. आपकी जो गैस है बहुत आसानी से आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो लार्ज वॉल्यूम्स को. सो पिस्टन का एग्जांपल देख लो. जब आप पिस्टन को पुश करते हो, व्हेन यू पुश अ पिस्टन, यू आर कंप्रेसिंग द गैस. एयर कैन इजीली बी कंप्रेस्ड बाय पुशिंग द पिस्टन. इन द केस ऑफ लिक्विड, अ लार्ज फोर्स कैन बी अप्लाइड. आप एक बहुत सिग्निफिकेंटली लार्ज फोर्स अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो. ऑब्वियसली जब आप फोर्स बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ेगा. जितना फोर्स आप बढ़ाओगे उतना आपका प्रेशर बढ़ेगा वाटर के अंदर, बट जो वॉल्यूम चेंज होगा ना वो निग्लेजिबल होगा. हार्डली एनी चेंज इन वाटर. दिस इज व्हाई इट इज termed as incompressible. Graphically I will show you. This is a pressure PV diagram. PV diagram is pressure against volume. Again, you will learn this in thermodynamics. We know that the relation between the pressure and the volume. Assuming temperature is constant, Boyle's law, pressure is inversely proportional to volume. Now, if I take 2 points, let me take any 2 point. आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पहला ट्राइंगल देखें, पहला ट्राइंगल देखें, मैंने 2 पॉइंट लिए हैं, एक उस टिप के ऊपर और एक आगे मिड के ऊपर, जो उसके 2 एंडिंग पॉइंट्स हैं. उधर प्रेशर मैं बढ़ा रहा हूं, दैट इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर. वो जो वर्टिकल लाइन है उसका साइज देखें कि इतना प्रेशर को बढ़ाने के बाद मेरा जो डेल्टा वी है या चेंज इन वॉल्यूम है, हाउ स्मॉल इट इज कंपेयर्ड टू द सेकेंड पार्ट. तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है, दिस इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड निग्लेजिबल. इट इज हार्डली एनी चेंज. कंपेयर इट विथ द second diagram. Just for a small amount of pressure, there is a big change in volume. Hence, there is a greater compressibility over here. So compressibility determines the type of fluid and differentiates between a fluid. देखें, ये आपका एक ऐसा डायग्राम है. जब मैं आपको एग्जाम में देता हूं, आई गिव यू वन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन एन एग्जाम, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ये डायग्राम दे दूंगा और मैं आपको एक जगह लिख दूंगा रीजन ए और रीजन बी. अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आइडेंटिफाई
ए आइडेंटिफाई बी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपने लिखना क्या होगा, आपने सिर्फ लिक्विड रीजन, एक तरीका तो आपको कंप्रेसिबिलिटी का मालूम है कि लिक्विड यहां पर ये आ जाएगा, लिक्विड रीजन बड़े ट्राइंगल की जगह आएगा और गैस रीजन बी की जगह आएगा। सपोज यहां पर कंप्रेसिबिलिटी नहीं लिखा होता, आपको कैसे मालूम होता लिक्विड कहां आता, गैस कहां आता? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें और ग्राफ देखें, ग्राफ के अंदर आंसर इसका दिया हुआ है। थर्मो वाला आपको ये बेहतर पढ़ाएगा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं थर्मो पढ़ाता हूं तो मैं निकाल सकता हूं आपको। आपको क्या लगता है कि लिक्विड ऊपर क्यों आएगा जहां पर बड़ा ट्राइंगल है, और गैस नीचे क्यों आएगी जहां पर स्मॉल ट्राइंगल है? कंप्रेसिबिलिटी के लिए कंप्रेसिबिलिटी चेंज है ना सर, वहाँ लो अच्छा, ये तो कंप्रेसिबिलिटी मैंने हाई आपको है। बताया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये तो मैंने आपको बताया है। फर्ज करें मैं कंप्रेसिबिलिटी हटा देता, तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि गैस किधर आएगी, लिक्विड कैसे आती, किधर आती? सर फर्स्ट वाले में प्रेशर ज्यादा लगाया है लेकिन फिर भी वॉल्यूम थोड़ा ही चेंज हुआ है, लेकिन देखें, सेकंड वाले में दीज आर प्रेशर जस्ट कम है। थर्मोडायनेमिक, बिल्कुल हाँ, नहीं वो बात आपकी सही है। मेरा बोलने का मकसद ये है, अगर मैं आपको ये ट्राइंगल देता ही नहीं और बोलता कि इस कर्व के ऊपर लिक्विड रीजन को मार्क करें और गैस रीजन को मार्क करें, कैसे मार्क करते हैं? सिंपल आइडिया ये है कि आप पीवी डायग्राम देखें। पीवी डायग्राम जो आपको नजर आ रहा है, लिक्विड के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है कम होता है? वॉल्यूम वाइज देख लें, वॉल्यूम वाइज लिक्विड के अंदर कम होता है ना कंपेयर टू गैस। गैस एक्सपैंड्स ऑलमोस्ट टेक्स अ लार्जर वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली जिधर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द थिंग, अगर मैं यहां पर कंप्रेसिबिलिटी नहीं लिखता तो आपको मालूम होता कि टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड गैस रीजन है, बिकॉज द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, गैस यही करती है, लो प्रेशर चेंज हाई वॉल्यूम, और इसका रिवर्स लिक्विड साइड के अंदर होता है। बट दिस आई थिंक इसका आपको बेहतर आंसर जब मिलेगा जब आप थर्मोडायनेमिक्स खुद पढ़ोगे इस कोर्स के अंदर, तो आई विल नॉट गो फर्दर इनटू दिस। आप कंप्रेसिबिलिटी वाइज देख लें, कंप्रेसिबिलिटी वाइज जिधर ज्यादा चेंज हो रहा है प्रेशर के अंदर और कम चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, दैट इज इनकंप्रेसिबल। और जिधर स्मॉल चेंज ऑफ प्रेशर ब्रिंग्स अ सिग्निफिकेंट चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज टर्म्ड एज अ कंप्रेसिबल रीजन। अब आप आ जाएं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, वेट एंड मास के ऊपर। वैसे तो आपको इन दोनों के बीच में फर्क मालूम होगा, बट आई विल लाइक टू जस्ट रिफ्रेश योर knowledge. In order to understand a fluid's properties, mass and weight must clearly be distinguished. Mass is the property of the body of a fluid which deals with the inertia or resistance to a change in motion. वैसे मास क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी एंड इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिधर भी खड़े हो, जो भी आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो, मास जो होगा आपका वो सेम होगा। मास कैन नॉट चेंज। अगर आप दुनिया में खड़े हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड तकरीबन 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर अगर आपका मास 50 केजी है, आप मून पे भी चले जाएं तो आपका मास 50 केजी रहेगा, मास आपका चेंज नहीं होगा। वेट क्या होता है? वेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड which weighs and is a force with which the fluid is attracted to the earth by gravitational field. जो आपका weight होता है, that is dependent upon the gravitational field. So the value will change with the gravitational field based on location. So the major difference is the value of the mass will not change irrespective of location. The value of the weight will change with respect to your location and the gravitational field. अगर आपका weight अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो मून के ऊपर होती है, दैट इज नियरली 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल मोशन ऑन द अर्थ। तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेट है वो मून के ऊपर कम हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं या किसी को समझ नहीं आ रहा है, प्लीज लेट मी नो देयर एंड देन। Weight and mass can be related together by Newton's law of motion. Second law,
F is equal to ma. When we speak of weight W, we say that acceleration is equal to the value of g, which is the acceleration due to gravity. जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू ma, हम उसको W इज इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं. W इज इक्वल टू फोर्स, W आपका फोर्स हो गया, और A जो है वो A इज इक्वल टू g ऑन अर्थ, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, तो इसलिए हम g लगा सकते हैं. तो F इज इक्वल टू ma, W इज इक्वल टू mg भी रिलेट कर सकता है. इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट होंगे द न्यूटन. क्लियर हो गई बात? यस सर. चलें, अब कम टू दिस SI सिस्टम इन अ बिट. जब मैंने आपको SI सिस्टम बता दिया तो ये आखिरी पॉइंट ऑन दिस स्लाइड आई विल टेल देन. चलें, आई कैन टेल इट यू राइट नाउ. SI सिस्टम के अंदर आपकी जो G होती है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको सबको मालूम है. जिस तरह हमारे पास एक SI सिस्टम होता है, इसी तरह हमारे पास एक अमेरिकन सिस्टम होता है जिसको हम US कस्टमरी सिस्टम भी बोलते हैं. उसके अंदर आपके यूनिट्स चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लेंथ का यूनिट है मीटर, तो अमेरिकन यूनिट के अंदर वो क्या होगा? वो फुट हो जाएगा. अगर आपका मास का यूनिट है केजी, अमेरिकन सिस्टम के अंदर वैसे मेन यूनिट क्या होता है? पाउंड. तो इसी तरह अमेरिकन सिस्टम के अंदर जो आपकी जी की वैल्यू है ना, दैट इज 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर. यानी अगर आप जी SI में ले रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप जी अमेरिकन सिस्टम में ले रहे हैं तो आपको 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा. दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन. अगर आपका क्वेश्चन इज इन अमेरिकन यूनिट्स, यानी आपका जो मास है वो पाउंड में दिया गया, अगर आप वॉल्यूम ढूंढ रहे हो तो वो फीट क्यूब में दिया गया है. अगर सब कुछ अमेरिकन यूनिट में है तो आपको आपका जो जी है वो भी अमेरिकन यूनिट में लेना पड़ेगा, 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स प्लीज अपने मैसअप नहीं कीजिएगा. ये यूनिट्स की एक्सरसाइज कराने का मकसद ही ये है कि आप अपने यूनिट मैसअप नहीं करें. बेस्ट आंसर आपको SI यूनिट में देना चाहिए. अगर कुछ नहीं बोला गया हो, आप अपना आंसर SI यूनिट में दीजिएगा. मैं यूनिट्स के ऊपर बहुत अहमियत रखता हूं. अगर आप यूनिट गलत लिखेंगे या आप यूनिट नहीं लिखेंगे, मैं उस आंसर को कैंसिल कर देता हूं, बिकॉज विदाउट अ यूनिट यू आर नॉट एन इंजीनियर. इंजीनियर को अपने यूनिट मालूम होते हैं, और इंजीनियरिंग वैल्यू ही जब होती है जब उसके यूनिट आपको दिए जाते हैं. तो बिल फर्ज अगर आपने यूनिट नहीं दिया तो वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है. कभी कभी क्या मैं करता हूं कि आधी चीजें मैं SI यूनिट में दे देता हूं, आधी चीजें मैं अमेरिकन यूनिट्स में दे देता हूं. What you are supposed to do is you either convert all of them to SI unit or convert them to American unit. अगर ज्यादा वैल्यूज अमेरिकन यूनिट में है और एक SI यूनिट में है तो उस एक को अमेरिकन यूनिट में कन्वर्ट कर फाइनल आंसर को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें. वरना वैसे तो आपको आंसर SI यूनिट में लिखना चाहिए. अच्छा चलें. वेट एंड मास रिलेशन इज सिंपल इन द SI यूनिट ऑफ सिस्टम. SI यूनिट के अंदर वेट और मास के बीच में आपको मसला नहीं होता है. जो प्रॉब्लम आती है ना वो US यूनिट्स के अंदर आती है. आई विल टेल यू हाउ. देखें, अभी अभी मैंने आपको क्या कहा कि US यूनिट के अंदर US यूनिट के अंदर मास का यूनिट क्या होता है? पाउंड. मास का पाउंड होता है. कंफ्यूजन क्या होती है कि जब आप SI यूनिट की बात करें ना तो आपके पास आपका जो यूनिट है मास का वो केजी है,
और आपका फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, देयर आर टू डिफरेंट यूनिट्स। जब आप अमेरिकन सिस्टम की बात करें ना, तो अमेरिकन सिस्टम में वो क्या करते हैं, वो मास को भी पाउंड ले लेते हैं और वो फोर्स को भी पाउंड ले लेते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपने देखा होगा कि मास के साथ भी पाउंड होगा और फोर्स के साथ भी पाउंड होगा। तो यहां पर कंफ्यूजन आ जाती है। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है। जो आपका मास का पाउंड होगा ना, उसको हम लिखेंगे पाउंड मास, LBM, पाउंड मास, टू डिफरेंशिएट बिटवीन पाउंड फोर्स। पाउंड फोर्स क्या लिखा जाएगा, LBF। पाउंड फोर्स इज LBF, pound mass is LBM. That is to remove the confusion. But to automatically remove the confusion, क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था कि लोग वैसे ही कंफ्यूज हो रहे थे कि पाउंड को हम कैसे लिखते हैं। जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं रॉबर्ट मॉट, उसके अंदर मास का एक और यूनिट है जो आपने शायद अभी तक नहीं सुना हो। उस यूनिट को हम बोलते हैं स्लग्स। स्लग्स बोलते हैं। जो स्लग्स है ये मास का यूनिट है। अब देखें, जो मेरा फॉर्मूला था W इज इक्वल टू mg, मैंने m को सब्जेक्ट बना दिया। m को अगर मैंने सब्जेक्ट बनाया तो मेरे यूनिट्स चेंज, मेरा वो पैरामीटर्स चेंज हो गए। m इज इक्वल टू W अपॉन g। मैं अज्यूम करता हूं कि मेरी एक बॉडी वेट कर रही है 84.6 पाउंड फोर्स। देखें मैंने पाउंड फोर्स लगाया है LBF। अगर मैं सिर्फ LB लगाता तो कंफ्यूजन ये होती कि ये पाउंड मास है या पाउंड फोर्स है, क्योंकि आम तौर पे जब हम पाउंड की बात करेंगे, अगर आप एक आम तौर में पाउंड में बात करेंगे तो आप ये समझेंगे कि पाउंड एक मास का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वेट लिया जाता है पाउंड्स में, ये मास का यूनिट है। अगर आप अमेरिका में जाकर उसको बोल देंगे कि 2.2 पाउंड, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये मास है या फोर्स है, क्या करना है इसको। इसीलिए आप करेक्ट तरीका है बोलना 1 kg इज 2.2 पाउंड मास, LBM। इसी तरह फोर्स के यूनिट के लिए हम LBF यूज करते हैं। और अगर आपको कंफ्यूजन टोटली दूर करनी है, तो आप स्लग्स को इनकॉर्पोरेट कर लें, बिकॉज स्लग्स फोर्स का यूनिट नहीं हो सकता। स्लग्स इज ओनली अ यूनिट ऑफ मास। जिस तरह kg इज अ यूनिट ऑफ मास, ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास, टन इज अ यूनिट ऑफ मास, इन द अमेरिकन सिस्टम स्लग्स इज अ यूनिट ऑफ मास। अब ये देखें, अगर मैं मास की बात करता हूं, मास क्या आता है, 84.6 पाउंड फोर्स अज्यूम कर रहा हूं, वो वेट है, डिवाइडेड बाय 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, 2.63 pound force per second square foot. This means that, what does this mean? This means that pound force per foot second square, ये जो तीनों कंबाइंड हैं ये स्लग्स भी कहलाते हैं। अगर आपने यूनिट देखा पाउंड फोर्स सेकेंड अपॉन फुट, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्लग्स। बात समझ आई? समझ आई नहीं समझ आई? आ गई सर। आ गई। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं अगर किसी को नहीं समझ आई। आ गई, किसने बोला? रोल नंबर, विच रोल नंबर सेड आ गई? यस सर। रोल नंबर बताएं जी। 32। 32। चलें 32। मैं आपको ये बोलता हूं दैट माय आंसर इज 100 slugs. इन अदर वर्ड्स 100 slugs इन टर्म्स ऑफ पाउंड फोर्स के यूनिट्स में क्या आंसर होगा?
सर ये 100 पाउंड फोर्स पर जी फीट सेकंड स्क्वायर। हाँ, पर फीट सेकंड स्क्वायर नहीं, इट्स गोइंग टू बी 100 पाउंड फोर्स सेकंड स्क्वायर सेकंड पर स्क्वायर पर फुट। फीट, सॉरी। हाँ सही है, पर फुट। कहने का जी मकसद सर। ये है कि ये जो क्वांटिटी है ना, जिसको मैं अभी बोल्ड कर रहा हूं, इस बोल्ट के अंदर जो पाउंड फोर्स सेकंड स्क्वायर अपॉन फुट, ये जो तीन क्वांटिटीज है ना, ये तीनों मिलाकर स्लग्स कहलाती है। तो इस पाउंड फोर्स को अलग करने के लिए अमेरिकन सिस्टम किया। In the US system, if we use the value of G, अच्छा एक बात और याद कर लें कि अगर हम यूएस सिस्टम के अंदर जी की वैल्यू यूज करते हैं, जी की वैल्यू यूएस सिस्टम में क्या होती है, 32.2 फुट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल 32.2 फुट पर सेकेंड। अगर हम जी की वैल्यू यूज कर रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए, W इज इक्वल टू एम जी, या कोई भी चीज जहां पर जी यूज हो रहा है, हमें उसे एक कन्वर्जन फैक्टर देना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर को हम GC बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि GC क्या होता है और हम क्यों डिवाइड करते हैं, उसका भी आपको रीजन बताता हूं। मगर अभी ये याद कर लें कि कभी भी आपके यूनिट्स अगर में हैं, तो आपकी जो जी की वैल्यू है, वी नीड टू डिवाइड इट बाय जी। अगर आप GC से डिवाइड ना करें, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा यूनिट के अंदर आपको जी को कोई चीज से डिवाइड नहीं करना पड़ता। अमेरिकन सिस्टम में लाजमी है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत होएगा। क्यों गलत होगा? यूनिट कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अगर आपके यूनिट बैलेंस नहीं होते, यूनिट कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो आपके आंसर में फर्क आ जाता है। और हमें क्या करना है, वी नीड टू शो द डिफरेंस बिटवीन पाउंड मास एंड पाउंड फोर्स as they are not the same, which I've already told you. The value of the above constant is the same as value of G in the US system, but different. ये जो वैल्यू है ना, 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर पर पाउंड फोर्स, this is the value of GC. इसको मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ये जो 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन पाउंड फोर्सेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ GC। ये जो कांस्टेंट है ना GC, इसको बोल्ड कर देता हूं। दिस कांस्टेंट GC is equal to 32.2 पाउंड मास फुट सेकेंड स्क्वायर पाउंड फोर्स। देखें, G and GC are two different things. Even though their values are same, they are different. How are they different? ये है GC। GC के यूनिट्स क्या हैं? 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाउंड फोर्स। और G के यूनिट क्या होते हैं? 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये यूनिट सेम है? न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ें, क्या ये यूनिट सेम है? इस फुट पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाउंड फोर्स, इज दैट सेम? यस या नो? नो सर। नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट द सेम। इसीलिए हम G को GC से डिवाइड करते हैं। अगली स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो, मगर मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये हम क्यों करते हैं। पहले तो इस स्लाइड को जरा फॉलो करें। फ्रॉम प्रीवियस डिस्कशंस इन द यूएस सिस्टम, मास एंड फोर्स बोथ हैव द यूनिट पाउंड। ये मैं आपको बता चुका हूं। In order to differentiate the force, it is denoted by pound force and pound mass. Assume कर ले Newton's second law of motion, F is equal to ma.
तो आपके फोर्स के यूनिट क्या आने चाहिए? आपके फोर्स के यूनिट जो आने चाहिए वो आना चाहिए पाउंड फोर्स, यही आना चाहिए ना, पाउंड फोर्स। एफ का यूनिट क्या आना चाहिए? यस सर, पाउंड फोर्स। पाउंड फोर्स। मगर जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया पाउंड मास फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, एम के यूनिट क्या हैं? पाउंड मास। एम के यूनिट है पाउंड मास। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो पाउंड मास और फुट मल्टीप्लाई हो गया पर सेकंड स्क्वायर। तो यही चीज मैंने की, पाउंड मास इनटू फुट, यानी ये आपका एम है मल्टीप्लाई बाय ए, पाउंड मास पर फुट पर सेकंड स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो यूनिट क्या आ रहा है मेरा? पाउंड मास फुट पर सेकंड स्क्वायर। Is that the SI unit? Is that the unit for force? Is that the unit for force? सर अगर एमए No, के it's not. रिलेशन से देखें तो यही होगा। नहीं है, मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, नहीं है, ये फोर्स का यूनिट नहीं है। इसको कहीं लिख लें या याद कर लें कि फोर्स का यूनिट अमेरिकन सिस्टम में पाउंड फोर्स होगा, LBF होगा। सही है, ये फोर्स का यूनिट होता है। और ये LBF नहीं है, ये LBM मल्टीप्लाई बाय FT डिवाइड बाय S स्क्वायर है। दिस इज नॉट LBF। तो हमें इसको यूनिट कंसिस्टेंट करने के लिए GC से डिवाइड करना पड़ता है। यही वजह है मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके अमेरिकन सिस्टम में कहीं भी आपके क्वेश्चन में G आ जाए, उसको GC से लाजमी डिवाइड कर लीजिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप F इज इक्वल टू MA कर रहे हैं तो वहां पर G आता है, तो G को GC से डिवाइड कर दें। अगर आप W इज इक्वल टू mg कर रहे हैं तो वहां पर G आता है, G को आप GC से डिवाइड कर लें। कैसे, क्यों करते हैं? अब देखें, F इज इक्वल टू MA, मैं G को GC से डिवाइड कर रहा हूं, मैं G को GC से डिवाइड कर रहा हूं। W क्या होता है? W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। अगेन मैं G को GC से डिवाइड कर रहा हूं। अज्यूम मैंने किया W इज इक्वल टू मास, मैंने क्या लिया? मास मैंने लिया 1 पाउंड मास। G के यूनिट्स क्या थे? G के यूनिट्स थे 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने ये पीछे लिखा था 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं GC से। GC के यूनिट्स क्या होते हैं? GC के यूनिट्स ये होते हैं 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय पाउंड फोर्स। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं 32.2 तो आपस में डिवाइड हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आपस में डिवाइड हो जाएगा, फुट और फुट डिवाइड हो जाएगा। ये पाउंड फोर्स डिवाइड के अंदर है, ये ऊपर चला जाएगा और ये पाउंड मास से कट जाएगा। आखिर में क्या रह जाएगा? 1 पाउंड फोर्स। यूनिट कंसिस्टेंसी हो गई। यूनिट कंसिस्टेंसी हो गई, यस या नो? सर ये समझ नहीं Yes. आया, एक बार दोबारा समझा दो। मैं दोबारा समझा दूंगा। मगर मेरा 1 पाउंड फोर्स लाने का मकसद ये था कि मैं आपको दिखा दूं कि W का यूनिट जो होता है, फोर्स का यूनिट जो होता है, वो पाउंड फोर्स होता है। किसको समझ नहीं आया? रोल नंबर बताएं। सर 53। 53 कहां से समझ नहीं 39 आया? सर। अच्छा, 53 और 39 कहां से समझ नहीं आया? सर ये आपने जो कन्वर्जन बताई है ना, ये अच्छा। जो आप क्रॉस वो किया है 32.2 से 32.2 कट जाएगा और जो बचेगा, या ये वाले स्टेप्स लास्ट स्टेप समझा। लास्ट स्टेप समझा दें। दोनों को यही प्रॉब्लम है या किसी को एक और चीज भी समझ ये नहीं आई? सर यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम है। अच्छा देखें, जी सर। मैंने आपको ये बताया कि G के जो यूनिट्स हैं वो
32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि लाजमी जहां पर जी हो, यूनिट कंसिस्टेंसी के लिए आपको जीसी से डिवाइड करना पड़ेगा। जीसी के यूनिट क्या होते हैं? 32.2 पाउंड मास फुट पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाउंड फोर्स। ये जो पाउंड फोर्स है ना, ये डिवाइड में आ रहा है। तो अगर कोई चीज डिवाइड में आ रहा है तो वो 1 अपॉन समथिंग होता है। तो अगर ये 1 अपॉन पाउंड फोर्स है तो पाउंड फोर्स ऊपर जाकर सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं बन जाएगा पाउंड फोर्स। इसको चले बाद में ले जाएंगे, पहले हम यूनिट्स काट लेते हैं जो हम काट सकते हैं। हम मैं हाईलाइट करूंगा तो आपको खुद समझ आएगा। ये 32.2, ये 32.2 और ये 32.2, दिस विल इजिली बी कैंसल्ड आउट। सही है? दिस सेकेंड स्क्वायर and this second square, this will easily be cancelled out. Similarly, this foot, ये वाला foot and ये वाला foot, this will easily be cancelled out. आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह गया सिर्फ ये पाउंड मास डिवाइडेड बाय पाउंड वन फोर्स, अपॉन पाउंड फोर्स। जी तो सर। 1 अपॉन पाउंड फोर्स को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय पाउंड मास। यही बच गया ना? यस सर, यस सर। तो पाउंड फोर्स डिवाइडेड बाय पाउंड मास। अब ये जो पाउंड मास है ये इस वाले पाउंड मास से कट जाएगा। तो आपके पास बच क्या गया? 1 मल्टीप्लाई बाय पाउंड फोर्स जो ऊपर है, विच इज 1 पाउंड फोर्स। मैंने सिर्फ उसको 1 स्टेप के अंदर यूनिट्स को कर दिया है। अगर आपको अब भी समझ नहीं आती तो इसको पेपर के ऊपर लिख कर यूनिट्स काट कर देखें, खुद ब खुद कट जाएंगे। आ गया सर, आ गया। आ गया समझ? तो सिर्फ ये किया था। तो कहने का मकसद ये है कि द फोर्स इज करेक्टली बैलेंस्ड विद द अप्रोप्रिएट यूनिट। कहने का मतलब ये है, द क्रक्स ऑफ द थिंग, whenever g or acceleration due to free fall is used in the US system, उसको आप GC से डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। SI यूनिट के अंदर G का मसला नहीं है। अमेरिकन यूनिट के अंदर जहां भी G हो उसको GC से लाजमी डिवाइड करिएगा ताकि आपके यूनिट्स पाउंड फोर्स पे आ जाएं। बाज बच्चे क्या करते हैं, वो ये G तो ले लेते हैं बट दे फॉरगेट टू डू GC। इफ यू फॉरगेट टू टेक GC, योर यूनिट विल नॉट कम इनटू पाउंड फोर्स। क्लियर हो गया अब? और केमिकल आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज इन दिस कॉन्सेप्ट। केमिकल इंजीनियरिंग में भी ये जीसी का कॉन्सेप्ट जो होता है ये सबसे मुश्किल होता है बच्चों को समझाना, क्योंकि वो ये जीसी से डिवाइड करना भूल जाते हैं। और आपको मैंने वजह भी बता दी जीसी से क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपको पाउंड फोर्स का यूनिट लाना है। फोर्स का यूनिट होता है पाउंड फोर्स, मास का यूनिट होता है पाउंड मास। अब क्लियर हुआ? आगे जाऊं? यस सर। यस सर, क्लियर। अरे अच्छी बात है। अब बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। बुक के अंदर आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट फॉलो करेंगे, एसआई सिस्टम में सेल्सियस फॉलो होगा, वैसे केल्विन होता है बट इन दिस बुक सेल्सियस इज फॉलोइंग, और फ़ारेनहाइट वुड बी यूज्ड इन द अमेरिकन सिस्टम। इसका एक रिलेशन होता है, दिस रिलेशन यू नो आल्सो, दैट TC इज इक्वल टू TF minus 32 divided by 1.8। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स होते हैं केल्विन एंड रैंकाइन, एंड यू नो दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है वेयर वर्क इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। और केल्विन की वैल्यू क्या होती है एब्सोल्यूट जीरो पे? 273 केल्विन। रैंकाइन की वैल्यू क्या होती है? 460 केल्विन, 460 रैंकाइन। This you know from your previous knowledge, but we will not be using Kelvin and Rankine much in this book. We will be using centigrade or Fahrenheit. Density, specific weight and specific gravity.
as fluid mechanics deals with continuous flowing liquid, it is convenient to relate mass and weight of a fluid to a given volume. आपको मास और वेट को आपस में रिलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका लिक्विड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है. डेंसिटी क्या होती है ये सबको मालूम है. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. स्पेसिफिक वेट क्या होता है और ये फॉर्मूला नहीं है, ये अभी देख लें. पेपर में मैं आपको मुश्किल वाले फॉर्मूलेज दे दूंगा, जो आसान फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आपको नहीं दूंगा. स्पेसिफिक वेट क्या होता है? स्पेसिफिक वेट इज डिनोटेड बाय गैमा. इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. वेट पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? अगर ऐसा यूनिट में देखा जाए तो वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है? वेट क्या है? फोर्स है. फोर्स क्या होती है? न्यूटन पर मीटर क्यूब. सही है. स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज weight per unit volume. तो in SI unit it's going to be Newton per meter cube. अमेरिकन सिस्टम में क्या होगी? पाउंड फोर्स, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया W का यूनिट क्या होता है, पाउंड फोर्स. पाउंड फोर्स पर फुट क्यूब. मीटर के इक्विवेलेंट फुट होता है, तो पाउंड फोर्स फुट क्यूब, यही इसका अमेरिकन इक्विवेलेंस है. स्पेसिफिक ग्रेविटी. Often both specific weight and density of a fluid are defined in a relationship to a density or specific weight of a common fluid. Specific gravity simply क्या होती है? If I make it easier, it is also known as relative density. Relative density क्यों बोला जाता है? Relative density इसलिए बोला जाता है क्योंकि you are taking it in perspective with a known density. अब जो आपका स्टैंडर्ड होता है, या आप वाटर को लोगे एज अ स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ वाटर, या आप डेंसिटी ऑफ एयर को लोगे. तो विथ रेफरेंस टू दैट अगर आप कोई चीज की डेंसिटी मार्क करोगे तो ये स्पेसिफिक डेंसिटी या वो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा. स्पेसिफिक ग्रेविटी के क्या यूनिट्स होंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोई यूनिट नहीं होगा, बिकॉज इट इज द रेशियो. डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द अदर सब्सटेंस. डेंसिटी के दोनों यूनिट्स कैंसल आउट हो जाएंगे. इट इज अ रेशियो नेवर हैज यूनिट्स. जो कॉमन फ्लूइड हम लेते हैं रेफरेंस के अंदर, वो हम वाटर या एयर को लेते हैं. अच्छा, हम जो लेते हैं, we take water at 4 डिग्री C. 4 डिग्री C पे हम लेते हैं बिकॉज इस पॉइंट के ऊपर डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटेस्ट. हमारा रेफरेंस पॉइंट 4 डिग्री C होता है. जब हम क्वेश्चंस करेंगे और टेबल्स रीड करेंगे, मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा. I think I will stop here because I think I should do unit conversions first, and then we will continue back with specific gravity.